إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان، بے پناہ، بہت ان گنت نعمتیں، اور اس اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم تمام کو اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی عظیم نعمت سے بھی نوازا، اور ہم لوگ رمضان المبارک کا آدھا عرصہ پار ہو چکے ہیں، ہم سے جو ہے آدھا عرصہ گزر چکا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو موقع دیا ہے اسے ہم غنیمت جاننا ہے، مجھے اور آپ کو۔ اب دیکھو ہمارے سامنے بالکل آخری عشرہ آنے کو ہے، 16واں روزہ ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان میں جب آخری عشرہ آنے سے پہلے یا جب آخری عشرہ آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا کہ جو آدمی اس سے محروم ہو گیا، یہ خیر سے دور ہو گیا، سمجھو کہ سب خیر اس سے جاتا رہا، پورا خیر اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آخری عشرہ گزرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان فرماتی ہیں: شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے، باندھ لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیا لیلہ، راتوں کو جو ہے جاگتے، راتوں کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، قیام میں، تلاوت کلام میں اللہ کے نبی اپنے آپ کو لگائے رکھتے۔ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر بار کو بھی جگاتے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے آخری عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کرتے، اور سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ درس و تدریس کو بھی بند کرتے
اور صرف عبادت میں اپنی زندگی گزارتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے معاملے میں بتایا جاتا ہے رمضان جب آتا ہے تو ایک آندھی کے مانند اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں لٹاتے, خرچ کرتے. آندھی کی مثال دی گئی, اتنا تیز, اس قدر تیز اللہ کے نبی خرچ کرتے جاتے, لٹاتے جاتے اللہ کے راہ میں. تو ہمارے سامنے بالکل وہ مرحلہ آ ہی گیا ہے, تو میں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں. گنتی کے جو دن ہیں یہ رمضان کے مقصد جو رکھا گیا اس مقصد کو پانے کی کوشش کریں. مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بخشوانا, کثرت سے استغفار کرنا, کثرت سے استغفر اللہ بولنا, اللہ سے معافی مانگنا, اپنے گناہوں کو یاد کرنا, رونا, گناہوں کو سامنے رکھنا, اپنے آپ کو مجرم بنانا, اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کے اپنی ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے استغفار طلب کرنا, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ کا ذریعہ بنانا. اور میرے دینی بھائیوں, اکثر لوگ جو ہے رمضان المبارک جب آتا ہے تو زکوٰۃ دینے کو جو ہے اپنے ایک معمولی عمل بنا لیتے ہیں. حالانکہ رمضان المبارک سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق کب سے ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق اس کی اپنی مدت سے ہے. کیا ہے مدت اس کی؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس مال آیا ہے محرم کے مہینے میں, لڑکی ہے شادی ہو گئی, مال ان کو دیے ہیں, مال ان کا اپنا بنا ہے محرم کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں. جب وہ مالک بنی ہیں اپنے مال کی, جو سونا ہے چاندی ہے جس کو جو نصاب کو پہنچ رہا ہے, وہ جو مہینہ ہے جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے لے کر 1 سال گزرنا, یہ اصل میں مدت ہے, یہ اصل میں وقت ہے رمضان, یہ زکوٰۃ کے تعلق رکھنے, زکوٰۃ کو ادا کرنے کے معاملے میں. تو سال جیسے ہی گزر جاتا ہے, جیسے ربیع الاول کے مہینے میں آپ مالک بنے ہیں, زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس پہنچا ہے, تو اس کے اوپر 1 سال بھی گزرا, 1 سال گزرا, اس کے بعد فوراً آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دو. نہیں, 6 مہینے تک انتظار کریں گے, رمضان آ رہا ہے, تو نقصان آپ کا بھی ہے. نقصان, بڑا نقصان آپ کا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو رقم ہے سونے چاندی کی, وہ رقم 6 مہینے کے بعد وہی رہتی, بلکہ کیا گارنٹی ہے؟ جیسے آج ہمیں دیکھ رہے, آج تو ہمارے منہ کھلے ہوئے ہیں کہ سونے چاندی کے ریٹ کو دیکھ کر. یہ ایک نقصان. اور بہت بڑا نقصان یہ کہ رمضان کے اندر دیکھنے کو بہت زیادہ یہ ملتا ہے کہ غریب, فقیر, مسکین اپنے عبادتوں کو چھوڑ چھاڑ کے محتاج جو ہیں روڈ پہ آ جاتے ہیں, مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں, مالداروں کے دروں پہ آتے ہیں اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے. مدرسوں سے جو لوگ نکلتے ہیں اصول کرنے کے لیے, یہ صرف اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کی راہ میں, یعنی مدرسوں کے تعلق سے وہ نکلتے ہیں. ان کا جو بہت بڑا جو بوجھ ہے, وہ جو ہے عبادت کا جو بہت بڑی ذمہ داری تھی, وہ سائڈ میں رکھ کے یہ ایک ذمہ داری کو لے کے, بوجھ لے کے نکلتے ہیں. یہ بوجھ نہیں ہے اپنی جگہ, مگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مالدار جو زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کرنے کی وجہ سے, مالداروں کا اپنا حصہ نہیں نکالنے کی وجہ سے, ان کو بھی تکلیف بھگتنا پڑ رہا ہے, ان کو بھی تکلیف جھیلنا پڑ رہا ہے. یہ غریب, مسکین, یہ مدرسے کے جو ذمہ دار, مدرسے کے جو مدرس, جو سفیر, یہ اپنی عبادتوں کو بالائے طاق رکھ کے نکل کے آ جا رہے, تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ غلط فہمی ہے. اور اسی طرح مال جو خرچ کرنے کا جو تعلق ہے وہ رمضان میں خرچ کرنے سے ہے. زیادہ سے زیادہ لٹانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی آپ خرچ کرنے والے بنو, رمضان میں بھی خرچ کرو. رمضان میں معمولی دنوں میں جو خرچ کرتے اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کا ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں جو بولنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں مال جو خرچ کرنا جو لے کے بیٹھے ہیں وہ عام دنوں کے خرچ کرنے سے بڑھ کر ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں. رمضان کی قید نہیں ہے یہاں پہ, رمضان میں بولنے کا نہیں ہے. جیسے رمضان میں 2 مخصوص فرشتے نکلتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں اس کو ابھارتے ہیں, گناہ کرنے والے اسے روکنے یعنی دھمکی دیتے ہیں, رک جا بول کے بولتے ہیں. فرشتے وہ رمضان کے خاص ہیں. اور یہ جو 2 فرشتے ہیں وہ روزانہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو دعا کرتے ہیں, اللہم اعطی منفقا خلفا, اللہم اعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو تیری راہ میں دے رہے اسے اور زیادہ دے,
جو तेरी राह में नहीं दे रहा है, रुका के रख रहा है, बखीली कर रहा है, अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे बोल के बददुआ कर दे। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह जो हुक्म दिया वही वो करते हैं। तो फरिश्ते जब अल्लाह की फर्माबरदारी में ये काम कर रहे हैं, गोया अल्लाह ताला खुद ये हुक्म दिया है, तो जो खर्च करने वाले हैं उनको अल्लाह मजीद देगा, जो खर्च नहीं करते उनको जो है बर्बाद करके अल्लाह रख देगा। तो ये सोचना जो है रमजान में ही हमें ज़कात निकालना ये गलत बात है। बहरहाल ज़कात के सिलसिले में मैं और आप जो है चंद बातें सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐ नबी, आप मालदारों के पास से ज़कात लें और गरीबों में तकसीम करें और उनके माल को आप पाक करें, उनके हक में आप दुआ करें। ये हाकिम वक्त को यानी मुसलमानों के जो लीडर हैं उनको ये हुक्म दिया जा रहा कि ज़कात का माल ले, ज़कात का माल गरीबों में तकसीम करें और जो अल्लाह की राह में ला के देते हैं उनके हक में दुआएं करें। अल्लाह के नबी दुआ करते थे। तो रही बात ये, माल पाक कैसे करता है, माल पाक कैसे करता है? एक ये कि जो ज़कात का निसाब को पहुंचने के बाद जो माल है वो माल में गरीबों का भी हक है, गरीबों का भी हक है। वो हक निकालने से जितना माल बचत है वो माल पाक रहेगा, वो माल हलाल रहेगा। ये एक बात। दूसरी बात ये कि उस माल में अल्लाह ताला बरकतों से नवाजेगा। पाकिज़गी का माना अल्लाह बरकत देगा। बोलते नहीं बरकत ही नहीं है घर में, रुकेगा कब? बरकत कब रहेगी? जब आप उसका हक निकालोगे। उसका हक ही नहीं निकालते आप, बरकत कैसे मिलेगी? बरकत भी रहेगी, माल भी हलाल होगा। और तीसरी बात यह भी बताई गई कि माल बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी उस माल में। अल्लाह ताला जो है आपके खर्च करने की वजह से वो माल आप किसी और को दिए हैं, अल्लाह ताला आपके पीछे किसी और को इंतजाम कर देगा कि वो आप तक पहुंचा दे। कारोबार में बढ़ोतरी और मुनाफा, प्रॉफिट अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ऐसे रास्तों से अल्लाह देगा कि आप सोच भी सकते नहीं। अगर देने वाले बन गए तो अल्लाह ताला आपके ऊपर देगा, आपको आपके ऊपर खर्च करेगा अल्लाह ताला। तो ये बात है। तो हम लोगों को, और ये एक बात ये भी कि माल पाक होगा जो ज़कात निकालते हैं। हमें ज़कात नहीं निकालने की वजह से ये गरीबों का जो हक है हमारे पास रह गया, ये पूरे माल को गदला करेगा, पूरे माल को खराब करेगा, पूरे माल को हराम कर देगा। ये माल पूरा गंदा हो जाएगा। ये गरीबों का हक है। और जब हम देते हैं, देने के टाइम पे भी हमारे दिलों में एहसान का कोई हिस्सा नहीं रहना। क्या करते लोग ज़कात देने के टाइम पे? ज़कात देते ही देते हुए जो है फोटो खिंचवाना, एहसान करते हुए अपने आप को अक्कड़ बनाना, अक्कड़ दिखाना, ये सारी चीजें नाजायज है। आप दे रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ऊपर आप अमल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एहसान कर रहे हैं। एहसान क्या भी नहीं है। ये मामूली सदका अलग है, ज़कात अलग है। ज़कात ये उनका हक है। बात समझो। हक के माने को, आप दुकान में गए खरीदने के लिए, पैसे दे दिए, आप कोई चीज ले रहे हैं, वो चीज नहीं दे रहा है तो आप रुक के रो लेते, वापस कैसे आ सकती? मेरा हक है वो, मैं पैसे दिया हूं, मुझे देना चाहिए आप। यही मामला गरीबों का, ये माल है, ये गरीबों का ये हक है। ये माल जिनके पास भी सोने का निसाब, चांदी का निसाब पहुंच चुका है, उन लोगों के पास जो है 2.5% जो है 2.5% जो है उनका हक है, उनको जाना चाहिए ये माल। अगर नहीं जा रहा है, रुक के है, तो पूरे माल को भी खराब करेगा, बल्कि ये पूरा सोना क़यामत के दिन जो है अल्लाह आग में तपाएगा। यौम युहमा अलैहिम फतुक्वा बिहा जिबाहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इसको आग में तपाकर फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व गुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम बताया गया। यानी ये तुम्हारा माल है। क्या माल है ये? जिसकी ज़कात तुम नहीं निकाले थे। पूरा माल जो है आग में तपा तपा के उसे गर्म करके उनके पेशानियों पे, उनके पहलुओं को, उनकी पीठों को दागा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं करे, माल की मोहब्बत लेके बैठे। ये माल ज़कात अदा करते तो ये माल की मोहब्बत अल्लाह तुम्हारे दिलों से भी निकालता। ये बहुत बड़ा फितना है, ये फितने से भी अल्लाह तुम्हारे को बचाता। मगर तुम बच नहीं सके तो अल्लाह ताला जो है लगाएगा, सजा देगा, ऐसी खतरनाक सजाएं। ये
पेशानी, पहलू और पीठ क्यों? इसलिए कि जब गरीब को देखते ही मालदार के पेशानी पे बल आते, अब्बा फिर आ गए, बाजू पलटते ही पलट के जाते हैं, पीठ दिखाते हैं उसको। उसका अपना हक है, उसे देने से हम कतराएं? मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ज़कात के सिलसिले में जो है ये बातें हैं। और कितना यानी निसाब जो है हम सब अक्सर लोग जानते हैं, मैं और आप जो है ये मसला भी जानना है कि जैसे नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, ज़कात भी फर्ज है मालदारों के ऊपर। जब आपका नमाज के मसले मसाइल को सीखना, नमाज की दुआओं का सीखना आपके ऊपर जितना जरूरी है, जितना फर्ज है, ज़कात अगर आपके पास माल इतना है कि ज़कात आपके ऊपर फर्ज है, तो उसके मसले मसाइल को जानना भी आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जा बजा अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, युकीमुस्सलाह व युतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात। ऐसा अल्लाह 20 जगह कुरान में बयान फरमाए। मतलब ये कि नमाज से ज़कात को जोड़ने का मामला ये है कि जितना जरूरी हमारे लिए नमाज पढ़ना अहम है, नमाज के बारे में उसके मसले मसाइल को जानना जरूरी है, वैसे ही ज़कात को भी हम क्या करते, साल में एक मर्तबा ज़कात के बारे में मसले पूछते हैं। साल में एक मर्तबा ज़कात के बारे में मालूमात हम मालूम करने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी गलत फहमी है हमारी, कितनी बड़ी गफलत है, हम गफलत में डूबे हुए हैं कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान है, क्या हम मुसलमान हैं? अरे मुसलमान हैं तो ये 5 बातों के ताल्लुक से हमारा ताल्लुक क्या है? ये 5 ये जो बुनियादी बातें हैं, इनके ताल्लुक से मैं और आप कितनी जानकारी रखते? जानते तो दुनिया बहुत कुछ है, जानते तो बिजनेस बहुत ज्यादा, मगर ये 5 बुनियादी बातों के अंदर जो ज़कात, नमाज, ये चीजें हैं, इसको हमने सिर्फ खास बना के रखा है। खाली ईदैन को पढ़ लो, खाली जुमा को पढ़ लो, खाली रमजान में दे दो। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह ऐसे ही जन्नत उठा के नहीं देने वाला। ये जन्नत को पाना है, खुपानी पड़ेगी अपने आप को, कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने आप को। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारी कि रमजान आया तो ही हम ज़कात दें, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता किसी के पास जो है 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी अगर है, तो वो हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीनार और दिरहम थे। 20 दीनार जिसके पास हो और 200 दिरहम जिसके पास हो, वो जमाने में उस टाइम पे करेंसी थी। आज जो है हमारे पास करेंसी वो नहीं है, पैसे बिल्ले, दूसरे बिल्ले हमारे पास है, नोट हमारे पास है। उस टाइम पे सोना चांदी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उसका हिसाब लगाकर जो हमारे सामने रखा गया वो ये 85 ग्राम सोने का लगाते हैं और 595 ग्राम चांदी का लगाते हैं। तो इसमें जब हमारे पास इतना माल है तो उसके ऊपर ये नहीं बताया गया कि आपको मिलते ही दे दो, आपको यह बताया जा रहा है कि 1 साल गुजरने के बाद। हाँ, ऐसा भी होता है कि उसमें से हमारे को जरूरत पड़ गई, हमारा साल गुजरने से पहले पहले हम खर्च कर दिए, हमारे जरूरी सामान हम खरीदना था, हमने ले लिया, हमने उसमें खर्च कर लिया, अब वो कम हो गया है, ज़कात फर्ज नहीं है। अरे कितना आसान दीन है, सुभान अल्लाह। ऐसा इस्लाम हमारा है, ऐसे इस्लाम के सामने मैं और आप अपने आप को जो है पीठ फेर के भाग रहे, तो ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है। और लोग सवाल करते, आज तो बहुत बड़ा हुआ है रेट, बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है। लोग सवाल क्या करते, बचने के लिए सवाल करते, कैसे मैं बचूं, कैसे मैं पैसों को बचाऊं। अरे उनको तो शर्म आनी चाहिए जो ज़कात का पैसा खाने के लिए वो मसला पूछ रहे हैं। ज़कात का पैसा खाना ये गरीबों का, जो जिनको देना चाहिए था, जिनका हक है, जिनका माल है, उनका है, वो खाने के लिए मैल है। ये माल का माल, जैसे आप किसी चीज को पाक करते हैं, गिलास गलीज है, उसके अंदर गंदगी है, वो गंदगी को साफ करते हैं आप, वैसे गंदगी के ताल्लुक से आप सवाल कर रहे हैं कि ये गलाजत जो है वो भी मैं कैसे खाऊं, वो भी मैं कैसे लूं, वो भी मैं अपने पेट को कैसे भरूं। अल्लाह खबरदार कर रहे हैं, अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है।
یہ مال جو 2.5% مال ہے غریبوں کا، یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. اگر تم کھا رہے ہیں تو سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر تپایا جائے گا، مال کو جلایا جائے گا. اگر آپ بزنس مین ہیں، بزنس کا آپ کے پاس مال ہے، تو وہ بھی ویسے ہی معاملہ. آپ کا سٹاک اتنا ہے، زکات کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو آپ کا مال کا حساب لگا کر باقاعدہ، ہاں آپ بولیں گے وہاں میرا پیسہ اٹکا ہے، یہاں مجھے آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. ہاں یہ چیز ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورا دکان خالی کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورا جو ہے سٹاک مارکیٹ میں جو تمہارا سامان ہے پورا ختم کر دیں، ایسی تو بات نہیں ہے. جن کا سٹاک رک رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، 1 سال گزر گیا تو جتنا رکا ہوا ہے اس میں زکات کا نصاب ہے. اب آپ خرچدار ہیں تو خرچ کو مینج کریں، جتنا پیسہ بچا ہے اس میں سے زکات نکالیں. اب کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، غلہ نکالنے کا معاملہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ نے فرما دیا جب بھی کھیتی کٹائی ہوتی ہے اسی وقت زکات ہے. اس کے اوپر سال کا گزرنا نہیں ہے. آپ کے پاس جانور ہی تو جانوروں کا بھی ایک حساب ہے، بکریاں 40 ہوں اور گائے بیل جو ہے وہ 30 ہوں، اونٹ جو ہے 5 ہوں، اس طرح سے ان کا نصاب بنتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے یہ نصاب کو، اس کے معاملات کو جاننا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یہ ایک بات کے اوپر زور دیں. جن کے پاس بھی مال ہے وہ صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے کی اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں. بچے جو بھی ہیں اسکول کے بچے اوپر جائیں، اوپر ان کے لیے اچھا انتظام ہے. آپ تمام جو ہے سامنے آنے کی کوشش کریں. سامنے جو ہے جگہ ہے، بہت اچھی خاصی جگہ ہے، پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور سامنے آ جاؤ، جگہ ہے، آپ سامنے آ جاؤ پورا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ کہاں خرچ کریں ہم. اللہ رب العالمین قرآن میں 8 مصارف زکات بتاتے ہیں غریبوں میں، یعنی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. پورے 8 یہ مصارف زکات ہے. 8 مصارف زکات. اس میں کون ہے؟ غریب ہے، مسکین ہے. اور دیکھو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے طور میں زکات ادا کرنے میں ہم اپنے آپ کو فیصل بنا لیتے اور جو ہمارے کو سمجھ میں آیا وہ کر لے رہے. اصل جو ہے قرآن اور حدیث کو دیکھنا، میں اور آپ اسلام کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایسے بھی لوگ کثیر تعداد میں ہیں، زیادہ تعداد میں ہیں، جو لوگ اسلام سے محبت کر رہے ہیں، اسلام کو قبول بھی کر لیے ہیں، 90 ہیں. ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے، زکات کا مال خاص طور سے. اب غریب مسکین جو بھی دکھ رہا ہے، ایسا بھی لوگ بہانہ تلاش کر لیتے، زکات کا مال میں پیسہ رکھ لیتا ہوں اور سال بھر اسی میں خرچ کرتے رہتے، وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلنے والا. آپ دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں یا دے دیں مگر فوراً دے دیں. ایسا نہیں کہ میں 4 مہینے رکھوں گا، 5 مہینے رکھوں گا، یہ نہیں چلنے والا. اب رہی بات یہ کہ ان میں 8 مصارف زکات میں جو ہے فقیر مسکین، جو جس کے پاس جو ہے 3 ٹائم سکون سے کھانے کے لیے نہ ہو، اور مسکین اس کو بولتے ہیں کھانے کے لیے تو ہے، مکمل ضروریات اس کے پاس نہیں ہے، ضروری سامان جو ہے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اسے بولتے ہیں مسکین. اور جو قرضدار ہیں، جو اللہ کے راستے میں مسافر ہیں، سفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمیں جو ہے غریب ہے، اگر واقعی وہ مجبور ہے، تنگ دست ہے، ان کے اوپر بھی ہم زکات خرچ کرتے ہیں. تو والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اور جو غلام ہیں، غلاموں کا تو دور نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام خرچ کرنے میں زکات کا مال خرچ کرو، زکات کے مال سے غلاموں کو آزاد کرو بول کر جو حدیث جو اللہ رب العالمین حکم دیے، علماء یہ بتاتے ہیں جس کو جو تنگی میں بہت زیادہ مبتلا ہے اس کو ایسا مہیا کر دینا، ایسا دے دینا جس کا کچھ بسیرا ہو جائے، جس کا کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، مطلب اس کی زندگی قابل بن جائے. تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں. اس طرح سے 8 مصارف زکات اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائے. پھر دیکھو زکات کے سلسلے میں میں اور آپ جو ہے جو سستی کوتاہی ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کو جیسا کچھ عطا کیا ہے، ہمیں دیتے ٹائم پہ کبھی بھی ہمیں یہ کبھی بھی نہیں مانگنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کرو، آپ کو ہم نے جو دیا ہے ایک وقت آئے گا آپ بھی ہمارے کو دیں. ایسے باتیں جو احسان جتلانے کی باتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرنا. دعا کرنے کو بھی بولنا. زکات کا مال جب دیتے ہیں آپ، زکات کا مال ان کا حق ہے، آپ کیا احسان نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں دعا کی بھی درخواست کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ بھی دعا کرنے کا احسان کیا ہے؟ بدلہ مانگنے جیسا. تو بدلہ ہمارے کو بالکل نہیں مانگنا ہے. بہرحال یہ زکات کے سلسلے میں کچھ مسائل تھے، اہم مسائل. اور ملکیت،
हमारी अगर है मिल्कियत बोले तो हमारा माल है, अगर कहीं भी हो हमारा है वो। हमारा कब नहीं होता? आप मिसाल के तौर पे मैं आपको दिया, आप खर्च भी कर सकते, आपका इख्तियार है उसके ऊपर, बोले तो मेरा माल नहीं है वो। बात समझ रहे? आप बोल रहे मैं गिरवी रखा, मैं वहां रखा, मैं इनको दिया उनको दिया, तुम्हारा है माल, निसाब को पहुंच रहा है, ज़कात फर्ज होगी। लोग बोलते नहीं वहां कर्ज है यहां कर्ज, भाई आप मिल्कियत रखते हैं कि नहीं, ये असल मसला है। मालिक आप हैं कि नहीं? आप बोल सकते क्या उनको, भाई मैं तुम्हारे पास जरा दिन के वास्ते रखा हूं, तुम्हें खा लो पी लो बोल के बोल सकते? नहीं भाई, मैं जब लेना चाहूं ले सकता हूं, ये अगर बात है तो आप मालिक है माल के। तो ये बात भी हमारे को याद रखना। अक्सर लोग जो है इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, भाई हमारा माल तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, किसी और के पास है, तो ऐसी बात नहीं है। ये कुछ चीजें थी। और माँ बाप के ऊपर ज़कात का माल बिल्कुल जायज नहीं। लोग सवाल करते हम जो है दादा दादी को दे सकते क्या, बाबा अम्मी को दे सकते क्या? नहीं देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो उनको पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ज़कात का माल कैसे दे सकते हैं? उलमा भड़क के बोलते हैं इसके ऊपर, भाई आपको पाला पोसा परवरिश किए बड़े बनाए पूरा खर्च किया, उनके ऊपर ये गरीबों का हक देना बोल रहे हैं आप, तो ये गलत बात है। गैरों के पास हो सकता है ये कि वो कुछ भी करें, ओल्ड एज होम बनाए, कुछ भी बनाए, इस्लाम ऐसा नहीं करता। बाकायदा जो लोग आपके ऊपर एहसान किए उनका एहसान का मुकम्मल बदला आपको चुकाना चाहिए। हाँ, ज़कात देना यानी आप देना चाह रहे हैं गरीबों में, फकीरों में, आपके अपने रिश्तेदारों में हैं कि दें, अव्वल हक बनता है उनको देना, अव्वल हक बनता है। और वो अपने इलाके में देना आपका अव्वल हक बनता है। अपने इलाके से बाहर दूसरे गांव इधर उधर देना चाह रहे हैं, पहले आपके अपने इलाके में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था, ए मुआज तुम सबसे पहले तौहीद की दावत दो, अगर वो आ गए तौहीद पे, इस्लाम पे आ गए, नमाज का हुक्म दो, नमाज भी पढ़ने लग गए, तो ज़कात का फिर हुक्म देना। तो सुभान अल्लाह, चंद ही सालों में ज़कात का निजाम सही से चलाने के इवज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे यमन को ऐसा बना दिया कि पूरा ज़कात का माल जो है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के माल गनीमत में लाके पहुंचाया जा रहा है जरा ही दिनों में। इससे एक मसला यह भी मालूम होता है, वो हदीस तवील हदीस है हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो 3 साल 4 साल लगभग 4वें साल जो है ज़कात का पूरे यमन का माल ला के रख रही। बड़ी हिकमत ये कि माल को कहां खर्च करना है, वो अच्छे तरीके से अगर खर्च करेंगे तो ये फिरने वाले फकीर, ये मिस्कीन, ये कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी बाकी नहीं रहेगा अगर अच्छे सिस्टमैटिक से हम अगर अपना के अमल करेंगे तो। बहरहाल हमारी बदनसीबी बोले कि हमारे पास कोई बैतुल माल का सिस्टम नहीं है, एक मुनज़्ज़म तरीका हमारे पास नहीं है, जो अपनी मर्जी चाहे खर्च कर रहा है। मगर आप अपनी जगह जो है अच्छे अंदाज से, मगर ये हमारे से कभी गलती ना हो कि ज़कात का माल एक ही आदमी को जो है 10-10 लोग दे डाले, वो ऐसे ही बन जाए, हमेशा ज़कात का मुंतज़िर रहे, ऐसी बात भी नहीं है। उनको जो है गरीब अगर है वो इस्तिताअत वाले बन सकते हैं, ताकत है, जैसे हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने यमन में किया। बहरहाल इसी तरह हमारे सामने देखो आखिरी अशरा आने वाला है, तो एतिकाफ के सिलसिले में भी हम कुछ बातें सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी आखिरी अशरे में रमजान का हर रमजान जो है, हर साल में जो भी रमजान आता आखिरी अशरे में एतिकाफ अल्लाह के नबी करते। एतिकाफ करने का मकसद क्या है? मकसद ये कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुराक़बा इख्तियार कर लेना, एकसू हो जाना, अपने आप को एक ताई में बैठ के अल्लाह से अपने आप को रिश्ता मोलना, जोड़ना, ये असल बहुत बड़ा मकसद है। इसमें बड़ा फायदा क्या मिलेगा आपको? बड़ा फायदा ये मिलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है लैलतुल क़द्र आपको अता फरमाएंगे। आखिरी अशरे में इतना लैलतुल क़द्र है, तो लैलतुल क़द्र की तलाश में आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी कमर को कस लेते थे। माना क्या? कमर को बांध लेना। आपके सामने एक बहुत बड़ा घर है, आप अकेले हैं, काम करना है, तो कैसे करेंगे? आप अपने आप को कस लेके, बांध लेके अपने आप को तैयार करते हैं। अल्लाह के नबी आखिरी अशरे में ऐसे करते थे। अफसोस हमारा मामला ऐसा होता है कि बुरखे वाले बाजारों में नजर आते, नौजवान इधर उधर बैठे चबूतरों में खेलते नजर आते। आखिरी अशरा अल्लाह के नबी का ये हाल बनता था कि पूरी तैयारी करते लैलतुल क़द्र को पाने के लिए, मगर हमारे नौजवान
खेलने में, गपशपों में, बातों में, गाड़ियों में अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे बदनुमा, बद किरदार वाले काम और बेहयाई के काम भी करने में पीछे नहीं हटते लोग। अल्लाह बचाए मेरे भाइयों, गनीमत जानी, आखिरी अशरे को गनीमत जानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जो रात रखा है पूरे 80 पर 3 साल 4 महीनों से ज्यादा, 1000 महीनों से ज्यादा अल्लाह ने फरमाया इस कदर इबादत खाली अल्लाह एक रात में रखा है। वो एक रात मिल गई तो समझो कि हमारी सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे को जो है बेड़ा पार कर दिया, हमारी नजात मिल सकती है, हमारे अपने आप को गुनाहों को धुलने का बहुत बड़ा जरिया मिल सकता है। तो इससे बड़ी गनीमत की बात क्या हो सकती। ये जितने भी काम हम देखते हैं नौजवानों में हो, अक्सर नौजवान ऐसा करते हैं, हम जो इल्ला माशा अल्लाह बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं कि रातों में जबकि स्कूल के बच्चों को भी हम देखते हैं सुभान अल्लाह, दोपहर में बैठे अल्लाह का जिक्र करते, हमेशा अपने आप को जो है किसी से इधर उधर बातें किए बगैर एकसु होते। पूरे बच्चे वैसे नहीं रहते, पूरे नौजवान वैसे नहीं रहते, मगर कुछ नौजवानों को देख के तो रश्क होता है सुभान अल्लाह। ऐसे भी बच्चे हैं, स्कूल में ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं। माँ बाप का किरदार हमारे को नजर आता है, उनका इस्लाम को समझना हमारे को नजर आता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आखिरी अशरे में अपने आप को एहतिकाफ में मशगूल करें। एहतिकाफ ये ऐसी इबादत है सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल किया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाने के बाद उनके अज़वाज मुतहरात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एहतिकाफ करने लगी। और एहतिकाफ की जगह मस्जिद है, मस्जिद में एक खास जगह बनाना, जैसे आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड में कि ये एहतिकाफ के लिए मुख्तस है, खास है। जो भी एहतिकाफ करते हैं, एहतिकाफ करना चाहते हैं, उनके लिए 20वें रोजे को मगरिब की नमाज के बाद गोया 21वीं रमजान में दाखिल हो जाते हैं। मस्जिद में जब लैलतुल कद्र की तलाश में गुजारे, आखिरी अशरे की पूरी रातों में तलाश करना है तो ताखरात, पहली ताखरात में मस्जिद में गुजारे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने मुख्तस जगह, खास जगह में चले जाना और 10 दिन पूरा का पूरा एहतिकाफ करना। एहतिकाफ का माना क्या? आतकीफु, इसका माना क्या बोले तो एहतिकाफ इसे बोलते हैं कि एकसू हो जाना, अकेले हो जाना। उसमें अकेले हो जाने में जो जायज काम है वो भी हराम हो गई, वो भी मना हो गई इस्लाम में। कौन से जायज काम? बीमार पुरसी, कितना बड़ा सवाब का काम है मालूम? आप घर से उठ के किसी बीमार के पास गए हैं, फिर वापस आए हैं, अल्लाह ताला जो है आपके हक में जन्नत में मेवे चुनने वाले बोल के रख दिया और जो है अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। 70 हजार या 50 हजार फरिश्ते दुआएं करते हैं। ऐसे बेहतरीन सवाब को अल्लाह रोक दिया एहतिकाफ करने वाले को। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सवाब से महरूम हो गया, नहीं। आप अगर इरादा कर रहे हैं, आप बीमार पुरसी करने वाले थे, आप अगर ऐसे हैं कि वो कोई बीमार हुआ तो जा सकते थे, तो अल्लाह आपको सवाब जरूर देगा। ऐसा नहीं कि महरूम कर दिए, नहीं, अल्लाह पूरा अजर आपको देगा। कोई नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, आप नमाज में शामिल हो सकते हैं, मगर जनाजे के पीछे नहीं जा सकते। जनाजे के पीछे जाना, दफन होने तक रुकना, 2 उहद पहाड़ खर्च करने के बराबर सवाब मिलता है। कितना बड़ा अजर है, वो अजर भी सेम इसी तरह। आप एहतिकाफ कर रहे हैं, आपका इरादा अच्छा है, तो अल्लाह अजर आपको जरूर देगा, आपको महरूम नहीं होने वाला, अल्लाह नहीं करने वाला अल्लाह ताला। तो ये सारे फवाइद जो है एहतिकाफ से मिलते हैं। औरतों के लिए भी एहतिकाफ की जगह मस्जिद ही है। शर्त ये कि मस्जिद में उनके लिए अलग से खास एक इंतजाम कर दिया जाए और शोहर की इजाजत ली जाए। औरतें अपने सरपरस्ती की इजाजत से और मुनज्जम पर्दे के इंतजाम में, जहां मस्जिद में इंतजाम है तो वहां एहतिकाफ कर सकती हैं। हो जो बेकार लग़वियात हैं उससे दूर हो। शर्त क्या है? आप आदाब क्या इख्तियार करना? लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के लिए मुराक़बा हो जाना, मुराक़बे में बैठ जाना, अकेले में बैठ जाना, अल्लाह की जिक्र तिलावत। और दूसरा अहम मकसद ये कि क़ियाम करना, तरावी का एहतमाम बाकायदा करना, रातों में उठ उठ के नमाज पढ़ना। जब जमात के साथ तरावी पढ़ी जा रही तो आपको भी लाजिमन पढ़ना। ऐसा नहीं कि हम एहतिकाफ में बैठे हैं, बाद में खड़ते, बाद में पढ़ते, ऐसी बात नहीं है। शर्त यह है कि आप जरूर पूरी पाबंदियां करेंगे जो आपके लिए फराइज हैं। और इसी तरह आप एहतिकाफ में बैठे हैं तो लैलतुल कद्र की तलाश में आप बैठेंगे, एक जोश, एक वलवला, एक जज्बा लेके बैठेंगे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रात अता फरमाएगा। बहरहाल ये कुछ बातें थी, मैं आज आपके सामने रखना चाहा, मुख्तलिफ बातें जो आखिरी अशरा हमारे सामने हैं। गनीमत जानना है मुझे और आपको, सुस्ती, कोताही, गफलत से अपने आप को अलग करना है, अपने आप को दूर करना है।
हमें अभी भी वहाँ बहुत कुछ बचा है, हमें इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ये सुस्ती कोताही की बात है, ये काम आने वाली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोमिन और नेक बंदे ऐसे होते कि वो हमेशा अल्लाह से ऐसे मांगते कि अल्लाह से खौफ भी खाते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते। और हमें चाहिए ज़कात के सिलसिले में हो या अल्लाह की राह में खर्च करने के सिलसिले में हो, अल्लाह की राह में लुटाने के सिलसिले में हो, मेरे भाइयों दिलों को बखीली मत बनाइए, कंजूस मत बनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बन जाओ, अल्लाह की राह में देने वाले बन जाओ। जब कभी भी निदा आती अल्लाह की राह में खर्च करो, तो सहाबा को आपने देखा सहाबा को कैसे कैसे खर्च करने वाले। मेरे भाइयों हम यहाँ हैं कि माल को कैसे बचाएंगे देख रहे, वो सहाबा थे कि माल को और अच्छा दें हम, और बढ़ के दें हम बोल के लड़ते थे। हम हैं बचाने की फिक्र कर रहे हैं, वो हैं कि देने की फिक्र करते थे, वो और ज्यादा लुटाना चाहते थे। वो सहाबा के मानने वाले अगर हैं, वो नबी के मानने वाले अगर हैं, तो देर नहीं लगती कि हमारी मस्जिद के जो भी अभी बाकी काम है उसे भी बनाने में, जितने भी मस्जिद का काम अगर बाकी है, आप अगर देख रहे हैं कमजोरी यहाँ है, कमी यहाँ है, तो पूरे करने वाले आप बनेंगे, अल्लाह आपको बनाएगा। हमें सोच रहे हैं कि माल हमारे पास रुका तो अच्छा रहता, अरे अल्लाह बोल रहे मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह उसको हिफाजत में रखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 70 गुना बढ़ा के देता है अल्लाह ताला। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, उससे भी बढ़ के देता है अल्लाह ताला। अल्लाह झूठा है नऊजुबिल्लाह। हम बोल रहे हैं कि माल को बचा के, अल्लाह झूठा है। हम माल बचा बचा के सोच रहे हैं कि मेरे पास माल है, मैं ही मालदार हूं। अरे झूठे आप ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नवाजने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा देने वाला है, उसके देने में हमारे को यकीन नहीं है, कंजूस बनेंगे हम। उसके देने पे हमारे को ईमान नहीं आ रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी धरती को जैसे बनाया, देखते ही यकीन आता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैदा करदा बोल के यकीन मानते हैं, तो इस बात पे भी यकीन मानो कि अल्लाह की राह में आप देंगे तो आपको अल्लाह जरूर देगा। कैसे देगा सोच भी नहीं सकते। नहीं देंगे अल्लाह को मालूम है, नहीं देंगे अल्लाह को मालूम है कि कैसे निकालना अल्लाह को मालूम है। इसीलिए मेरे भाइयों आगे बढ़ो, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में जो है कोताही ना करो, सुस्ती ना करो, देर ना करो, अल्लाह के लिए खर्च करने वाले बन जाओ। अभी हमारे सामने आप लोगों के सामने दो ऐलानात मैं भी अभी करूंगा। अभी आप देखें बच्चे जो है सुभान अल्लाह मस्जिद भर जाती है, जुम्मा जब आता है स्कूल के बच्चे भी जो रमजान में पाबंदी से नमाज को आ रहे हैं, रमजान के अलावा भी आप देखे रहेंगे दरवाजे के पास भी नमाज पढ़ रहे हैं। दरवाजे के पास हमारे बड़े भाई जो है बार बार मेरे से लड़ते, मौलवी साहब नमाज नहीं पढ़ना, बोलो आप चप्पल छोड़ने की जगह नमाज पढ़ रहे, आप बोलो, आप क्यों नहीं बोलते आप बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है झगड़ना बहुत जायज है, बचा है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि ऊपर जो पिलर खड़ा के हैं आप देखे रहेंगे, पिलर तो बना के है, इंजीनियर भी जो बोले हैं कि ये पिलर बना के इतनी देर रखना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप जो है रमजान के बाद फौरन काम शुरू कर डालो। अभी देर कर दिया आप, इसलिए मैं आप तमाम से दरखास्त कर रहा हूं, जिम्मेदारों की तरफ से आप तमाम से मेरे भी ये आजिज़ाना अपील और दरखास्त है, जितना आप कोशिश कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। 12 से 15 टन लगते हैं स्टील का सामान, सख्त जरूरत है उसकी। अगर आप में से कोई 12 आदमी पैदा हो जाए, ज्यादा नहीं, कितने जने मेरे भाइयों, 12 जने, हर एक जना 1 टन भी ले लिया तो क्या मुश्किल है बोलो, क्या नहीं है, अल्लाह दिया नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते, आपको मालूम तो है ना फला आदमी ऐसा है, आप उसको पकड़ो, यहां जरूरत है, सख्त जरूरत। ऐसे जगहों में खर्च करना जहां पे दीन का बोलबाला होता है। आप नहीं भी दे सकते, सुने हैं, बोल सकते हैं, अगर नहीं बोले भी तो आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ रखेगा, आपकी सरजनश होगी, आपको पूछेगा अल्लाह ताला। इसीलिए मेरे भाइयों मेरा जो हक था मैं बोलना, आपको बोल दिया, बता दिया। अल्लाह कैसा है, कैसा देने वाला है, मैं बता दिया कैसा देने वाला है अल्लाह ताला, कैसा नवाजने वाला है अल्लाह ताला। ऐसे तजुर्बे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब खर्च करने आए तो वो डर गए, इतना प्रॉफिट आता बल्कि मैं समझा नहीं, डर गए वो, सही बोल रहा हूं मैं, डर गए वो। अभी भी है मेरे पास आके, आप उनका नाम पूछना चाहते हैं, उनकी जबानी में सुना सकता हूं आपको। ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। तो आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप खर्च करने वाले बनो, फिर देखो नवाजने वाला कैसे नवाजेगा। थक जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे जमा करते करते। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा का वाकया भी है बड़ा मशहूर, उसमें भी यही बात जो मैं बात बोला अभी,
थक जाएंगे आप, अल्लाह जब दिया तो लेने वाले थक जाएंगे लेते लेते। तो मेरे भाइयों कुछ ऐसा करो कि 12 जने या 20 जने तैयार हो जाओ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। आप आके जिम्मेदारों से मिलो कि हमारा ये आप अमाउंट नहीं दे सकते तो कम से कम सामान दिला डालो, सीमेंट हो, स्टील हो या कुछ भी हो, दिलाने की कोशिश करो। अभी आप जो है नमाज से फारिग होते ही मैं उम्मीद करता हूं आपसे, मेरी बात आपको समझ में आई, बल्कि उम्मीद है और यह भी उम्मीद है कि आप जरूर इंशाअल्लाह देंगे। क्या मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, जो भी कमी है उसे पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बारक अल्लाह, जिनका इंशाअल्लाह मुझे सुन के खुशी हो रही, अल्लाह सबको भी जो है वो जज्बा अता फरमाए, आमीन। और हम लोग दूसरा ऐलान जो है ये भी मैं करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। रायदुर्ग जो है एक मदरसा 100 साल से चल रहा है, जहां पे 650 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं सालाना, हर साल जो है हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार भी आए हैं, वहां के एक मुदर्रिस रफीक जामी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, वो तशरीफ लाते हैं तो हमारे पास आए हैं। तो 1 करोड़ से ज्यादा हर साल जो है उनके ऊपर खर्च होता है मदरसे के ऊपर। आप जाते हुए जो है जरूर ताउन करते हुए जाए मदरसे के हक में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह जो भी आप खर्च करते हैं रुपये के बदले में अल्लाह आखिरत में जखीरा बनाए। जोर से आमीन बोलो मेरे भाइयों, दिल की गहराइयों से आमीन बोलो कि अल्लाह ताला जो है जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी इबादत हम करते हैं, अल्लाह उन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम जो भी रमजान के बकिया दिन हैं उसे गनीमत जानने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के कुछ दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, इलाहुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन के ऊपर रहम करम का मामला फरमा, उन्होंने जैसे हमें बचपन में पाला है अल्लाह उनके ऊपर उससे बढ़कर रहम और करम का मामला तू फरमा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमा। हम सबको भी ईमान वालों के हक में दुआएं करते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जहां जहां भी मुसलमान मजलूम है उनकी गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह फलस्तीन में, गाजा पट्टी में मुसलमान बच्चे, बूढ़े, कमजोर औरतें अल्लाह बिलबिला रहे, अल्लाह रो रहे, रगड़ रहे अपने आप को, अल्लाह मजलूम है, अल्लाह उनकी गैबी मदद अता फरमा। अल्लाह जो भी जालिम हमारे सरों पे खड़ा है, मुसलमानों के सरों पे खड़ा है, अल्लाह वो जालिम को हिदायत दे, यानी तो उसकी सफाई हस्ती मिटा दे। अल्लाह यहूद और नसारा जो इस्लाम के दुश्मन है हमेशा से, उनके लिए तू काफी हो जा। अल्लाहुम्मा मक्फिनीहिम बिमा शिइत, अल्लाह तू यहूद और नसारा के लिए काफी हो जा। अल्लाह हम तमाम को एकजुट बना, नेक बना, हमारे दिलों में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको मौत आने से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हम सब खबर में किसी को दफन करते हैं, अल्लाह एहसास हमें भी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें भी खबर में जाने से पहले उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे नबी, तेरे सहाबा का जैसा ईमान हमारे दिलों में भी पैदा फरमा। अल्लाह उतना बड़ा हक हम अदा नहीं कर सकते, हमें इतनी तो कोशिश करने की तौफीक दे जितनी हमारे अंदर ताकत है। अल्लाह हमारे अंदर जितनी ताकत तू रखा है उसके मुताबिक हमें इबादतें करने, अल्लाह तेरी राह में खर्च करने वाला हम सबको बना। अल्लाह हम सब लोगों के गुनाहों को बख्श दे, हमें गुनाहों के ऊपर रोने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रोना नहीं आता, अल्लाह हमारा दिल पत्थर बन गया है, दुनिया के मोहब्बतों में अटक गया है, अल्लाह उसे निकाल दे। दुनिया के फितनों से और दुनिया की बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया के फितनों में हम अटक चुके हैं, अल्लाह दुनिया की हकीकत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। माल की मोहब्बत हमारे दिलों में बस गई है, अल्लाह उस गलीज मोहब्बत को निकाल के फेंक दे। अल्लाह माल के फितने से, माल की मोहब्बत से हमें बचा ले। मालदार अगर हम में हैं, अल्लाह माल का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमें भी माल इस इरादे से कमाने की तौफीक दे जैसे तेरे सहाबा इरादा करके कमाए और खर्च करते थे, अल्लाह वैसा हमें भी बना दे। अल्लाह हमें भी जो भी माल है हमारे पास उसका हक हमें जरूरियात से बढ़कर जो भी है उसे दिल खोल के खर्च करने वाला हम सबको बना। अल्लाह बखीली से, कंजूसी से हम सबको बचा ले। अल्लाह हमें तेरी राह में खर्च करने से, सुस्ती कोताही से हम सबको बचा ले। अल्लाह हमें दिल खोल के खर्च करने वाला बना। अल्लाह हमारा जो भी खर्च किया हुआ है अल्लाह उसे उसका आखिरत का ज़ख़ीरा हम सबके लिए बना, और क़यामत के दिन जो अंधेरों में हमारे लिए रोशनी बना, जन्नत में ले जाने का जरिया बना। अल्लाह खबर के अजाब से नजात का जरिया बना, हम सबको मौत के सकरात से बचाने का जरिया बना। अल्लाह हम तमाम को नजात का जरिया बना। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر